Back student, let's restart our topic muscular tissue. In previous videos we discussed about epithelial tissue, connective tissue and nervous tissue, which is the main body parts of all organism and main body parts of all human being. And today we will discuss about muscular tissue. It is also very much important type of tissue, just like epithelial tissue, nervous tissue, connective tissue. So muscular tissue are also known as contractile tissue because these are those tissue which are having power of contraction and relaxation. So muscular tissue, you can say muscular tissue is also known as or contractile tissue. Contractile tissue, this is it having the power, contractile tissue or muscular tissue having the power to shorten its length as well as it also gain complete length. तो यहाँ पे हमारे मस्कुलर टिश्यू के पास शॉर्ट होने की पावर भी है और फिर रिलैक्स होने की पावर भी है, इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं. इट हैविंग, यू कैन से इट हैविंग मीन्स मस्कुलर टिश्यू हैविंग, muscular tissue having power of contraction and then relaxation. तो एक बार हमारे मसल्स contract करते हैं. For example, this is my hand and this showing the contraction, and then after when it contract तो इसकी जो हमारी लेंथ है हमारे मसल्स की वो आपस में वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जिन प्रोटीन से हमारे मसल्स बने हुए हैं वो प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है. इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन एंड देन आफ्टर जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो अपनी वापस से ओरिजिनल शेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं. यही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो है जिसकी वजह से एन एनिमल कैन मूव. सो दैट मूवमेंट जो हमारी होती है वो हमारे मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है. मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. मस्कुलर टिश्यू हैं, ये मस्कुलर टिश्यू हैं, इनकी जो सेल्स हैं उन्हें हम मसल सेल बोलते हैं. दीज आर नोन एज मसल सेल. एंड मसल सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. सो मसल्स सेल हैविंग the cells of muscle cells having long branched or unbranched and branched दोनों ही टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. branched and unbranched fibers और ये फाइबर्स जो हैं हमारी सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, दीज फाइबर्स आर नोन एज, अब मसल्स के फाइबर हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, विल कॉल दैट एज मायोफाइब्रिल्स. These are myofibrils. So muscles cell are made up of या consisting of many muscles fiber. Muscles means myofibrils, these having. एंड जो हमारी मसल्स सेल के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी सेल्स हैं सभी सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. तो हमारी मसल्स सेल में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसके साइटोप्लाज्म को भी साइटोप्लाज्म ही कहते हैं या इट हैविंग सम डिफरेंट नेम. सो its cytoplasm is known as sarcoplasm. The cytoplasm of muscle cell is known as sarcoplasm. Muscle cell का cytoplasm है that is known as sarcoplasm.
the cytoplasm of muscles cell is known as sarcoplasm. हम इसे sarcoplasm कहते हैं, sarcoplasm. And this sarcoplasm is responsible for storing of calcium. यहाँ पे हमारे मसल्स की मूवमेंट में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है, ATP का बहुत ज़्यादा रोल है. हमारे मसल्स फाइबर्स हैं, ये बने हुए होते हैं एक्टिन प्रोटीन से, जिन्हें हम एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन बोलते हैं. सेकेंड इज, अब आप ये भी आपको पता है कि ईच एंड एवरी सेल्स इज having a cell having layer, you say that is a, generally you can say that is a plasma membrane or cell membrane. तो क्या इसकी membrane है जो हमारी muscle से cell की membrane है, वो membrane क्या कहलाती हैं? So you will say these membrane of these cells are known as the membrane of, sometimes the membrane of these type of cells of such a cell, yeah, these cells are known as, R लगा दो, इस लगा दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी सेल्स हैं. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? द मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल, ये कर लीजिए. दिस सेल इज known as sarcolemma. Lemma means membrane, and sarco means it is related to the muscles. Membrane, these having muscles fiber. तो यहाँ पे हमारे muscles fibers होते हैं. Collectively they having nucleus. ये हमारे मसल्स फाइबर हैं. There is not single nucleus, there is syncytic condition, nuclei. So each cells having multinucleated state is having. तो यहाँ पे ये जो cells हैं, इनकी state कैसी होती है? multinucleated. And multinucleated को आप और क्या बोलोगे? We call this is the cynocytic. So cynocytic condition is here in case of muscles fiber. These muscles fiber are made up of, these muscle cells are made up of special protein. Muscle cells or these muscles tissue are made up of special protein, special types of protein. And majorly ये दो प्रोटीन होते हैं हमारे, कौन कौन से? These are actin protein and second is myosin. So myosin protein, ये जो हमारे मसल्स फाइबर्स हैं, ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने हुए होते हैं. मायोसिन प्रोटीन बोलते हैं, और मायोसिन प्रोटीन को थिक प्रोटीन भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज थिक प्रोटीन. Second type of protein is thin protein. Second type of protein is known as thin protein. और myosin है तो यहाँ पे it is actin protein. Actin protein. And this actin protein, another name of actin protein is thin protein. Thin protein. दोनों ही प्रोटीन जहाँ जिस हमारे मसल्स फाइबर में तो प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे बैंड्स बनाते हैं, तो थिक बैंड्स, थिन बैंड्स बोलते हैं. तो आपको याद रखना है कि मसल्स फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन. Myosin protein are known as
thick protein and myosin protein is known as thin protein. Next, type of muscular tissue. हमारे muscular tissue के कितने टाइप हैं? तो आपको बता दें मस्कुलर टिश्यू हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, सेकंड इज अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. तो स्ट्रेटेड मसल्स नाम से पता चल रहा है कि कुछ धारियां होंगी इसमें, इसीलिए उसे स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं. सो टाइप्स ऑफ मसल्स types of muscles fiber या muscular tissue. Types of muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप हैं? तो यहाँ पे there are 3 types of muscular tissue. Three types of muscular tissue. First is straighted. Muscular tissue. सेकंड, इसी स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को कहा जाता है स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू. Voluntary muscular tissue. Second is non-straighted muscular tissue. And this is also known as unstripped tissue, unstripped muscular tissue, and this is involuntary muscular tissue. Third is cardiac muscular tissue. So let's we start one by one. जो हमारा straighted muscular tissue है, that straighted muscular tissue is straighted means it is that type of muscular tissue which is unbranched and it having stripped like structure, stripped like this. These muscles fibers having stripped, and stripped की वजह से they form different bands. A band, I band. ऐसे टिश्यू जिनमें धारियां हैं, जिनमें स्ट्रिप्ड टिश्यू है, जिनमें स्ट्रिप्ड प्रेजेंट हैं, जो हमारे अनब्रांच्ड हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल दीज आर लॉन्ग हैं, वी कॉल दीज आर स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, और दीज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू एंड वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू. ये बैंड कंसिस्टिंग करते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन. बहुत ज़बरदस्त वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू दीज आर, एंड दे हैविंग बैंड्स, ए बैंड, आई बैंड. ओके, नेक्स्ट इज ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? सो दीज आर प्रेजेंट इन आवर लिम्स. ये हमारी लिम्स में प्रेजेंट होते हैं. लिम्स मीन्स इफ वी आर मूविंग from one place to locomotion if occurring by any animals या human being, तो क्या होता है कि उसमें पहले contraction होता है and then relaxation होता है, and contraction और जब relaxation होता है
तो ही हम आगे पहुंच पाते हैं. It is not possible without contraction and relaxation of such muscular tissue. तो यहाँ पे हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं. और आप दूसरा नाम क्या है इसका कि यहाँ पे ये हमारे स्ट्रिप्ड मसल्स हैं. स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये वो मसल्स हैं जिनमें काफ़ी सारे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बैंड्स की वजह से हमें इनमें धारियाँ दिखाई देती हैं, स्ट्रिप्ड दिखाई देती हैं. दैट्स वाई दीज आर नोन एज stripped muscular tissue, and these are voluntary muscular tissue. Why voluntary muscular? Suppose if I want to move from one place to another place, then I use my, generally and all animals use their limbs. तो जब वो limbs को use करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे move करेंगे, तो जब वो move करते हैं तो वो उनका वॉलंटरी एक्शन है. वो मूव ना चाहें, अगर मूव करना नहीं चाहें तो वो नहीं करेंगे, अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं. तो वॉलंटरी एक्शन है ये हमारा कैसा एक्शन है? दिस इज द वॉलंटरी एक्शन कि हम जो चाहें हम अपनी एक्टिविटी पे कंट्रोल कर सकते हैं. हम मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते. ये हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं. सो वी ऑल्सो कॉल दीज टाइप ऑफ टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल टिश्यू. नेक्स्ट इज नॉन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट ऑन लिम्स. नेक्स्ट इज नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू. ये वो टिश्यू हैं जिनकी जो मसल्स सेल्स हैं दैट इज elongated, long and elongated, tapered and which are having like this. These are known as unstraighted muscles, unstripped, or you can say these are smooth muscles. Smooth muscles होते हैं ये. These are smooth muscles. मतलब इनकी कोई भी इस टाइप की स्ट्रिप्ड प्रेजेंट इनमें नहीं होती है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? वी कॉल दीज आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स. इनके जो एक्शन होते हैं वो एक्शन इनवॉलंटरी होते हैं. मीन्स इनका जो एक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, उन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता. जैसे इफ वी आर ईटिंग समथिंग एंड the food material we are eating and the food material reaches to the our pharynx and then after esophagus. Esophagus is having non-straighted muscles. Esophagus के पास non-straighted muscles हैं, involuntary muscles हैं, तो वो अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता. फूड मटेरियल को स्टोमक में जाना है, मीन्स जाना ही है. Next is so that these type of tissue, non-straighted muscles, muscular tissue are found in gut of alimentary canal. Yeah, you can say these tissue are present in alimentary canal. Alimentary canal जानते हैं ना? Alimentary canal जिसमें हमारा फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता हुआ पास होता है. नेक्स्ट इज द कार्डिक मसल्स. क्या? कार्डिक मस्कुलर टिश्यू. दीज टिश्यू आर प्रेजेंट, दीज आर ब्रांच्ड टिश्यू. ये हमारे ब्रांच्ड टिश्यू होते हैं. दीज आर हाईली ब्रांच्ड. एंड ये कैसे होते हैं? इनका एक्शन है वो कैसा होता है? वो हमारे दोनों होते हैं. वॉलंटरी एक्शन भी होता है, इनवॉलंटरी एक्शन भी होता है. कार्डिक मस्कुलर टिश्यू है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नेम से पता चल रहा है. दीज आर दोज टिश्यू विच आर प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ हार्ट. वॉल ऑफ हार्ट. सो हार्ट का जो एक्शन है वो कैसा एक्शन है? दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन. इनवॉलंटरी एक्शन. तो यहाँ पे ये हमारे टाइप्स हैं मसल्स के. नाउ वी डिफरेंशिएट between all the muscular tissue. Have a look here. So this is the difference between all these muscular tissues: straighted muscles, unstraighted muscles and cardiac muscles. Straighted muscles, each muscles fiber is elongated. अभी हमने डिस्कस किया था कि ये elongated हैं, long हैं, cylindrical हैं, unbranched हैं. These are unbranched and non-tapered हैं.
These are not tapered. Tapered end क्या होता है? Tapered जो दोनों तरफ से नुकीला हो, ओके, उसे हम टैपर्ड एंड बोलते हैं। तो ऐसा हमारा स्ट्रेटेड मसल्स, हमारे स्ट्रेटेड मसल्स नहीं होते। दीज हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशंस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक कंडीशन। सेकंड, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये वो मसल्स हैं जिनमें धारियाँ होती है, धारियाँ मीन्स स्ट्रिप्ड प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए दीज आर नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स, सो दे शो स्ट्रेशंस। थर्ड वन इज, अभी ये भी हमने पढ़ा है कि ये वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। तो वॉलेंट्री एक्शन जैसे मूव करना, तो यहाँ जब हम मूव करते हैं, हमारी नेक है वो मूव करती है, तो यहाँ ये इसका मतलब ये है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन आवर लिम्स। लिम्स का मतलब क्या होते हैं? भुजाएं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हम चलने की कोशिश, हम चलते हैं, तो जब चलते हैं तो उनमें यही मसल्स हेल्प करते हैं चलने में, हमारे स्ट्रेटेड मसल्स ही मदद करते हैं। एंड दीज स्ट्रेटेड मसल्स आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। ये वो मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच रहते हैं और जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और हमने अभी ये भी पढ़ा था कि इनकी जो इनमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स की वजह से ही धारियाँ दिखती हैं इनमें। तो ये बैंड्स कौन से हैं? ये बैंड्स हमारे स्पेशल टाइप के प्रोटीन से इनकी अपीयरेंस होती है। और जो ए बैंड होता है उसमें मायोसिन प्रोटीन होता है, आई बैंड होता है जो बिल्कुल लाइट होता है, वहाँ पे प्रोटीन की प्रेजेंस ज़्यादा नहीं होती है, लाइट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ए बैंड और आई बैंड, ये हमारे दोनों टाइप के बैंड, ए बैंड, आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, और इस तरह से ये जो हमारे स्ट्रिप्स बनती हैं, एक आई बैंड के बीच का पॉइंट है वो, और दूसरा ए बैंड, दोनों की यूनिट आई बैंड के बीच में जेड लाइन होती है, इसे हम जेड लाइन बोलते हैं। और इधर ए बैंड से इधर भी जेड लाइन होती है, मतलब ए बैंड के इधर की साइड भी, लेफ्ट साइड भी आई बैंड के बीचों बीच एक लाइन होती है जिसे हम जेड लाइन बोलते हैं। और ए बैंड के दूसरी साइड, राइट साइड, जो आई बैंड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी एक बीचों बीच लाइन होती है, एंड वी कॉल दिस इज अनदर जेड लाइन। तो जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। What you did you get my point that the distance the unit which is present between one constitutive jet line, two constitutive jet line, that unit is known as sarcomere। और A बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम H लाइन बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे स्ट्रेटेड मसल्स के। अब हम चलते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स पे। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई बैंड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ ओवरलैपिंग में भी ये मदद नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो बैंड प्रेजेंट। ईच मसल्स फाइबर इज elongated, spindle shaped and tapered and these having, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? नॉन टैपरिंग एंड, यहाँ पे क्या है? टैपर्ड एंड। आप देख रहे हो, ये टैपर्ड एंड, ये भी टैपर्ड एंड। तो ऐसा जब एंड होता है उसे हम नुकीला, जिसे हम क्या बोलते हैं? टैपरिंग एंड। एंड यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं है, देयर इज यूनी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट, यहाँ हमारा स्ट्रेटेड मसल स्ट्रेशंस शो करता है, मीन्स बैंड्स हैं यहाँ, देयर इज नो स्ट्रेशंस। आप यहाँ देख रहे हैं कहीं स्ट्रिप्ड प्रेजेंट है? नहीं है। So there it does not show striations. Third is it occur in limbs, it occur in stomach and all tubular जो structure हैं हमारी body के अंदर ट्यूब जैसे हैं, उनमें हमारे unstraighted muscles present होते हैं। So these occur in stomach, intestine, blood vessels. Next हम आते हैं हमारे cardiac muscles पे। नेम से पता चल रहा है कार्डिक, कार्डियक मतलब हार्ट,
तो ये वो मसल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन ऑन द वॉल्स ऑफ आवर हार्ट, जो हमारे हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज फाइबर्स हैव सेंट्रली लोकेटेड 1 or 2 न्यूक्लियाई. ये सेंट्रली लोकेटेड हैं, बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड न्यूक्लियाई हैं. एंड दीज न्यूक्लियाई ट्रांसवर्स दे शोइंग ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस, और इनके अंदर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर हाईली ब्रांच्ड. आप देख रहे हैं दिस इज अनब्रांच्ड, दिस इज ऑल्सो अनब्रांच्ड, बट कार्डियक मसल्स आर हाईली ब्रांच्ड. नेक्स्ट, दे शो फेंट ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस. इनके अंदर थोड़ी थोड़ी ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती है, बट it don't having striations just like the striated muscles. Third one, it occurs only in the walls of a heart. कार्डियक मसल्स के नाम से ही अभी बताया, नाम से ही पता चल जाता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. तो स्टूडेंट, ये हमारे मस्कुलर टिश्यू के बारे में था. अगर आपको मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड या इस एनिमल टिश्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.